আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। বন্ধুরা, 1971 এই সালটা হচ্ছে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান উভয়ের জন্য একটি অর্জনের সাল। এই সালে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান উভয় কিছু না কিছু অর্জন করেছে। বাংলাদেশ অর্জন করেছে স্বাধীনতা, আর পাকিস্তান অর্জন করেছে একটি কালো দাগ। সেই দাগটা হচ্ছে হারের দাগ, যা 1971 সালে পাকিস্তান পেয়েছে বাংলাদেশ থেকে। সেই দাগটা হচ্ছে অত্যাচারী দেশ হিসেবে স্বীকৃত পাওয়ার দাগ। আর এই দাগটাকে পরিষ্কার করার জন্য বা এই দাগটাকে মোছার জন্য গত 50 বছর ধরে পাকিস্তানের প্রতিটা নাগরিক, অন্তত পাকিস্তানের প্রতিটা শিক্ষিত নাগরিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই দাগটাকে পরিষ্কার করা কোনোভাবে সম্ভব হচ্ছে না। আর সেই দাগটা পরিষ্কার করার জন্য পাকিস্তানের দরকার বাংলাদেশের, না নিজের দেশের অংশ হিসেবে নয়। বাংলাদেশ যদি বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের পাশে এসে দাঁড়ায়, তবুও কিন্তু পাকিস্তান নিজেদের সেই দাগটা কিছুটা হলেও কিন্তু পরিষ্কার করতে পারবে, মুছে ফেলতে পারবে। কিন্তু এমনটা হওয়া বা কতটুকু সম্ভব? কারণ বাংলাদেশ নিজেও তো সেই 1971 সালের কথা ভুলতে পারেনি। কিন্তু তবুও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এটা বলা হয়েছে যে পাকিস্তান সরকার জন্য সব কিছুর জন্য 1971 সালের জন্য বাংলাদেশের কাছে একটা মাত্র সরি বলে, ছোট্ট একটা শব্দ সরি। সব কিছুর জন্য, অতীতে যা কিছু হয়েছে সব কিছুর জন্য শুধুমাত্র একটা সরি যদি বাংলাদেশকে বলে দেয় পাকিস্তান সরকার, তাহলে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সাথে সকল সম্পর্ক স্বাভাবিক করে ফেলবে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের জন্য আর কোনো অভিমান থাকবে না। মানে 1952 সালে ভাষা আন্দোলন, গণহত্যা, লাখ লাখ মানুষের শহীদ হওয়া, আমাদের হাজার হাজার মা বোনেদের সম্মান হানি হওয়া, আরও কত কিছু, সব কিছুর জন্য আমরা শুধুমাত্র পাকিস্তান সরকারের মুখ থেকে একবার মাত্র সরি শুনতে চাই। আবার মনে হয় না যে আমরা পাকিস্তান থেকে খুব বেশি একটা কিছু চেয়ে ফেলছি। এটা কিন্তু আমরা ডিজার্ভ করি। যদিও পাকিস্তান সরকার কয়েকবার ইনডাইরেক্টলি সকল কিছুর জন্য বাংলাদেশের কাছে মাপ চেয়েছে, কিন্তু আমরা ডাইরেক্টলি পাকিস্তানের কাছ থেকে সরি শুনতে চাই। কিন্তু আমার মনে হয় না যে পাকিস্তান সরকার কখনো বাংলাদেশকে সরি বলবে ডাইরেক্টলি। শুধু পাকিস্তান সরকারই কেন, কোনো দেশের সরকারই অন্য দেশের সরকারকে কখনোই সরি বলবে না, কারণ সরি বলা মানেই হচ্ছে নিজেদের দোষ স্বীকার করে ফেলা। আর কোনো সরকার কখনো নিজেদের দোষ, অন্তত নিজের দোষ কখনো স্বীকার করে না। কিন্তু পাকিস্তান সরকার স্বীকার না করলেও পাকিস্তানের জনগণ কিন্তু অলরেডি অনেক আগে স্বীকার করে ফেলেছে, এবং এখন তো পাকিস্তানের জনগণ সকলের সামনে বাংলাদেশের কাছে মাপ চাইতেও রাজি হয়ে গেছে। যার একটা প্রমাণ হিসেবে যার একটা ভিডিও আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো বাংলা সাবটাইটেল সহ। তাই আমরা এখন বেশি কথা না বলে চলে যাবো আমাদের আজকের মূল ভিডিওতে। পুরো ভিডিওটি আপনার সাথে আছে আমি রিয়াদুল হক গালিব, আপনারা দেখছেন দ্য রিমার্কেবল মিডিয়া। सुल्तान साहब ने, उनसे पहले कर्नल फ़ारूक साहब ने और फिर प्रोफेसर साहब ने जो बातें की, वो सारी बातें मेरे दिल की बातें थी। और सब नौजवानों की जो मैंने बातें सुनी हैं, यही कुछ मैं भी कहना चाहता था। वैसे ही गर्मी जज्बात के साथ मैं भी कुछ कहना चाहता था। मैंने ये सोचा था कि आज की जो 50 साल के बाद, मुझे याद है, आज भी वो याद है, वो सीन मुझे याद है कि मैं 4 या 5 साल का होऊंगा तो मुझे 71 की जंग में मोर्चे के अंदर बैठना याद है कि हुआ क्या था। लेकिन 50 साल गुजर गए, उसके बाद पता चला कि जी उस वक्त एक जंग हुई थी, एक मुल्क हमसे जुदा हुआ था, एक ज़ख्म मिला था। उस ज़ख्म के साथ हमारी आज तक हम उसको ताज़ा ही किए हुए हैं। 50 साल गुजर गए हैं और 50 साल 55 साल के बाद जाके मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि हमने आज एक ऐसी फ़ज़ा के अंदर वही बात की है, अगर हम चंद साल मज़ीद पहले बात करते तो गद्दार कहलाते और हमें भी ऐसे ही केसेस का सामना करना पड़ता। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा, कर्नल साहब ने तो कहा हमें बहुत सारी बातें अब याद नहीं करनी चाहिए, प्रोफेसर साहब ने कहा तारीख़ को याद रखना चाहिए। तो बात यह है कि तारीख़ को याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि मेरे वालिदैन ने, मेरे दादा ने मुझे बताया था कि तारीख़ पाकिस्तान याद रखना ज़रूरी है। यहाँ बैठे हुए मैं एक, चूँकि आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, इन्होंने तो बुज़ुर्ग बना दिया, चलें बड़ा भाई समझ लें आज के दिन, लेकिन वो कहना ज़रूरी है। जो एक अमानत थी मैं उस पर बोलता रहा हूँ, आज मैं फिर आपके सामने अपने वो जज्बात रखना चाहता हूँ कि मेरे दादा ने 46 के इलेक्शन में सियालकोट से MLA थे, चौधरी नासरुद्दीन एडवोकेट, सियालकोट में, नासर रोड उनके नाम से मशहूर है। वहाँ शेख मुजीब आया करते थे और हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब के साथ, मेरे दादा के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। हमारी कोठी में ही वो रहा करते थे,
सोया करते थे, जब वज़ीर आज़म बने तब भी हुसैन शहीद सोहरवर्दी तब भी वो आया करते थे। दादा भी यही कहा करते थे, वालिद साहब ने भी यही कहा कि शेख मुजीब की जब बातें करते थे तो उनकी आंखों में आंसू हमने देखे हुए हैं कि कितना वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला इंसान था, लेकिन हमने उसे गद्दार कहा। खैर, ये बड़ी लंबी दास्तान हो जाएगी। मैं सिर्फ इसलिए कि कमानत के तौर पर एक बात थी जो मेरे तक भी पहुंची कि शेख मुजीब को मैंने तो कभी गद्दार नहीं समझा। अगर वो गद्दार होता तो आज हम बात क्यों करते। उसकी बेटी ही बांग्लादेश की वज़ीर आज़म है और हम ये चाहते हैं और हम बांग्लादेश से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, और मैं खुद चाहता हूं कि हम बांग्लादेश से माफ़ी मांगें। हमें बड़े दिल के साथ उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने शेख मुजीब के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें की हैं। शेख मुजीब ने उस वक्त 6 निकात की बात की थी। आज हम 50 साल बाद, पाकिस्तान खोने के बाद, पाकिस्तान तोड़ने के बाद उन्हीं 6 निकात को तस्लीम कर रहे हैं। तो क्या गलती की थी? अगर उस वक्त मीडिया आज़ाद होता, अगर उस वक्त आप जैसे नौजवान होते, तो क्या ऐसा अलमिया हो सकता था? सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी नहीं हो सकता था। शेख मुजीब ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया था। आपको याद होगा कि मादरे मिल्लत के साथ उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाई थी बांग्लादेश में, जो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान था। अगर वो गद्दार होते तो मादरे मिल्लत के साथ होते, मादरे मिल्लत के साथ खड़े होते। तो ये ऐसी बहुत सारी ऐसी नाजुक बातें हैं कि जैसे आपका अपना सगा भाई है, बेटा है, आप उसको दीवार के अंदर जब चुनने की कोशिश करेंगे तो लामहला वो भी आपके साथ कोई ना कोई बुरा सलूक करेगा, ज़रूर करेगा। तो मैं ये समझता हूँ शेख मुजीब ने शायद ये किया हो कि हमने जब उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की होंगी। मैंने अपने चचा से पूछा, जो एयरफोर्स के सीनियर तरीन ऑफिसर थे और एयरफोर्स की कॉलेजेस के वो प्रिंसिपल भी थे, तो मैं अक्सर पूछता था कि हमने सुना कि बहुत सारे बंगाली जो थे, जो एयरफोर्स में भी थे, उनके बारे में आपके नज़रियात क्या थे? हमेशा पॉजिटिव जवाब मिला कि अगर 65 में बंगाली ना होते ये एयरफोर्स में, तो पाकिस्तान शायद ही 65 की जंग भी जीत सकता। MM आलम का नाम जो है वो आज भी हमारे दिलों पर लिखा हुआ है। तो ये नफ़रत जो है, हमें अब उस नफ़रत की दीवार को, उस नए एहसास को जगाने के लिए हमें ही आगे बढ़ना होगा, बड़े भाई की तरह। हमने उन्हें बहुत जख्म दिए, हम दाएं बाएं बहुत सारे अपने दोस्त मुल्कों को जख्म दे चुके हैं, तनहा भी हो चुके हैं। लेकिन ये नई नस्ल, ये मीडिया का असर, ये सोशल मीडिया का असर, ये सारी कुव्वतें अब इकट्ठी हो गई हैं यूथ के साथ, यूथ के हाथ में आ गई हैं। तो मेरे ख्याल में अब इस यूथ को ही आगे आकर एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखनी होगी, पाकिस्तान के नए खारजा मामलात की बुनियाद रखनी होगी। आप ये सोचें, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर 80 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं। अगर इस खित्ते में अगर मुसलमान, और जबकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत भी है, अगर यही पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हो जाता है और उसको दफाई एतबार से मजबूत कर देता है, श्रीलंका को भी तो हमने किया ना, श्रीलंका की फौजी तरबियत भी तो हमने की अकेडमीज में, उनके साथ भी हमारे मुआहदे हैं। तो बांग्लादेश के साथ करने में हमें क्या कबाहत है? उनको तवाना करने में हमें क्या? अगर हम अपने बांग्लादेशी भाई को मजबूत एक एटमी मुल्क भी बनवा दें, तो इससे बड़ा क्या होगा? हमारे दुश्मन के सर पर 2 पाकिस्तान बैठ जाएंगे, और यही वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। और पाकिस्तान की তো পাকিস্তান সরকার রাজি না হলেও কিন্তু পাকিস্তানের জনগণ 1971 সালের জন্য বাংলাদেশের কাছে সরি বলতে রাজি আছে। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে যে বাংলাদেশ কি পাকিস্তানের জনগণের এই সরিটাকে অ্যাকসেপ্ট করে কি করে না। তো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্ত ছিল। আশা করি ভিডিওটি আপনার পছন্দ হয়েছে। যদি ভিডিওটি পছন্দ থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে একটা লাইক দিবেন, আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকন ছোটটি ক্লিক করে আমাদের পাশে থাকবেন। নেক্সট ডে আপনাদের জন্য আরো কিছু ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে হাজির হব। ততক্ষণ আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, যত সময় পাশে থাকার চেষ্টা করবেন। আসসালামু আলাইকুম।